Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. It was very painful, but result ये रहा कि जो डॉक्टर्स ने 2-2.5 साल बोला था लगेंगे इसको रिकवर होने. I recovered in 9 months and I went to the board and मैंने कहा सर आई एम फिट एंड फाइन. बोलता है यार इतना जल्दी नहीं कर सकते हम, 6 महीने तो अभी. was my girlfriend's call. So रात के 1:30 बजे थे. He said yeah go come on call her. मैंने कॉल किया उसको and he said कि okay tell her that you are the most beautiful woman in the world. And I said what doesn't kill you makes you stronger. उसके बाद जिंदगी का मतलब बोलते साक्षात्कार हो गया. मतलब मेरे कुछ भी नहीं मिलने वाले थे. मतलब जलाने के लिए मेरे बॉडी से कुछ भी नहीं मिलता. ऐसे जगह पे I was safe. Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you are doing good. My name is Sheetal Yadav and जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम मेजर सिद्धराम सर है. He has served as an NSG commando and उनकी सर्विस के अंदर काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं. He has given his service in counter-terrorism, counter-insurgency and he has also served in high-altitude mountains. Without any further delay, let's welcome sir to our platform Defense Roger. So welcome to Defense Roger. So आपकी जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है. So starting from the recommendation to training days, उसके साथ सर आपको इंजरी हो गई थी एनएसजी ज्वाइन करने से पहले. इट्स सेल्फ मोटिवेशन फैक्टर एंड आपके एक्सपीरियंसेस काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म के साथ साथ सर आपने हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पे भी आपने सर्व किया. But sir, I want to start this journey from the place where this personality has grown and this seed has been imbibed. Sir, I'm talking about Officers Training Academy Chennai. Sir, जब भी OT ट्रेनिंग के बारे में बात होती है तो काफी सारे किस्से सुनने को मिलते हैं. स्पेशली सर वहाँ की जो कंपनी है उनकी ट्रेडिशंस के बारे में तो काफी कुछ सुनने को मिलता है. तो सर आपकी कंपनी की ट्रेडिशंस कैसे हैं? Yeah. So thanks for this question. I'm from Kohima, the Killers Kohima company. And so like I'll tell you there are 2 battalions. One is Shivaji and another one is Ranjit Singh battalion. We are part of the Ranjit Singh battalion. And basically the Ranjit Singh battalion, it is located in such a way that it is completely isolated away from the headquarters. So जो हमारे जितने भी instructors या DSS होते थे, so they used to have a very free hand with us. So and the traditions basically that you asked about Kohima. So
we are more into all the physical competitions. That's our traditions. So मतलब इतना क्लैरिटी थी कि डीएसएस ने आते ही, या जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने आके क्लियर कर दिया था कि जस्ट फॉरगेट अबाउट द चैंपियनशिप ट्रॉफी एंड ऑल. वी डोंट वांट यू टू बी लिफ्टिंग द चैंपियनशिप या बैनर वगैरह, but you should not lose the cross country, march and shoot, या BPD competitions. So we are all focused on to the मतलब दौड़ना भागना फिजिकल एक्टिविटी उसी में रहती थी. इवन जैसामी भी उनका 40 km का जो एक रन बैक होता है, दे आर नोन फॉर इट. सो डीएसएस से लेके मतलब टॉप डाउन बैट हमारे बटालियन कमांडर्स होते हैं, एवरीवन इज जस्ट लाइक कि यार तुम पहले आओ ना आओ, वी डोंट केयर, बट यू शुड नॉट लूज द क्रॉस कंट्री. एंड सो दैट्स द ट्रेडिशन वी हैव. Okay. So as you mentioned, there are two battalions, Ranjit Singh Battalion as well as Shivaji. So शिवाजी को तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बोलते हैं, पर रंजीत सिंह को ऑफिसर्स बचाओ एकेडमी बोलते हैं. तो सर इसके पीछे की स्टोरी क्या है? Okay. Actually, I heard from you only, and I'm really surprised to know this. I mean, मैंने भी कभी सुना नहीं था, but मतलब fortunately you're right. We are from the Bajao Academy. So that's what I earlier told you. The Kohima and the Jisami, we are located in such a way that we are away from the headquarters. So मतलब that's a reason, that's a logical reason कि DSS को एक काफी फ्री हैंड मिल जाता है. एंड ट्रेडिशंस भी हमारे सारे ऐसे ही रहते थे. तो लाइक फिजिकल रगड़ा देना या फिजिकली एक्सर्शंस करना, वही सब उसमें ही इनटू इट. जो लाइन एरिया होता है या जैसे टैक्टिक्स के कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई होती है. सो डीएसएस आके बोलते थे ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको बस दौड़ना है. तो क्रॉस कंट्री जब होती थी, इवन जूनियर स्टफ में भी, वी यूज्ड टू टोल्ड दैट जितने भी बाकी कंपनीज होती है, दे वर लाइक कट दैट येलो, कट दैट येलो. ये काफी फेमस सेइंग है जब क्रॉस कंट्री होती है. तो येलो इज द कलर कोड ऑफ कोइमन्स. सो हमेशा मतलब बाकी कंपनीज को उतना ही प्राउड फील होता है कि बस भाई हमने कोइमा को कट कर दिया, उनके आगे निकल गए. दैट्स द अचीवमेंट. मतलब दैट्स द स्टैंडर्ड द कोइमा कंपनी हैज सेट. एंड जस्ट लाइक जेसामी फॉर द 40 km. सो और उस लेवल का फिटनेस उसके लिए तो फिर देन वी हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल्स. मतलब बाकी जितना रगड़ा पट्टी चलती थी. एंड होता क्या है कि जैसे शिवाजी बटालियन, दे आर वेरी क्लोज टू द हेडक्वार्टर आल्सो, नौशेरा एंड मैटिला एंड ऑल. तो अगर कोई डीएसएस चाहे भी कि रात भर लेट उनका कोई सेशन ले ले और एडजुटेंट की गाड़ी वहां से निकल जाए, या कि दे यूज्ड टू क्रॉस फ्रॉम वो, क्योंकि सेम ही लोकेशन में वो था. सो किसी ने देख लिया तो अचानक से वो बंद किया जाएगा एंड दे विल टेक सम एक्शंस. दैट्स व्हाई हमको रात को ज्यादा टच नहीं कर देते कोई. पर कोहिमा और जैसामी तो अलग से जंगल में हम पड़े थे. तो इट्स अ कमांडो बटालियन. या सर आपकी इंस्पिरेशन मेजर संदीप उन्नी कृष्ण है, एंड उन्हीं से इंस्पायर हो कि आपने एनएसजी ज्वाइन किया था. सर व्हाट इज द क्वालिटी दैट रियली इंस्पायर्ड यू फ्रॉम? the quality Major Sandeep Unnikrishnan had is the raw courage. So you must be taking classes for the defense aspirants, and there are OLQs जिसमें courage को आप बताते होंगे कि this is a very important quality for any officers. But raw courage ये होता है, just I wanted to tell everyone. See, if a situation given to you that you are stuck into a mall जहाँ पे अचानक से अलार्म बजा and you will just come to know कि वहाँ पे कुछ टेररिस्ट ने अटैक किया है and you don't know where to go, and like being a part of a security, जैसे first responders होते थे हमारे. Let's take an example of 26/11 attack जो ताज ट्राइडेंट में हुआ था. तो police force is the first responder. We lost very brave senior officers there. Of course they fought at the last moment, but unfortunately before they come to know the severity, the depth of the attack, they just lost their life. That's what happened, because AK-47, it's a very automatic weapon. Say 10 terrorists entering into a city, वो city का भी काफी मतलब prime locations थे वो सारे, कुलाबा के, मुंबई के, very strategically located, ताज होटल, CST, Newport Cafe. उसमें कोई 10 टेररिस्ट इतना सारा गोला बारूद लेके, ग्रेनेड्स लेके हमला करी, ये किसी ने सोचा नहीं था. So unfortunately we lost many police officers, but they were not aware of the
threat. Okay. Now the second situation I'm giving to you, that now you know that there are terrorists. They are having the AK-47s. They are having the hand grenades. They killed indiscriminately. मतलब कोई सामने बच्चा आ जाए, कोई बुढ़ा आ जाए, कोई औरत आ जाए, they don't care. उनको कोई लव लॉस नहीं उनके लिए. They are just come there to kill them. क्योंकि एक बार उनको मरना भी है. मतलब their motivation is to kill everyone and just get killed. ऐसे टेररिस्ट के सामने व्हेन यू नो एवरीथिंग, आप जिस सिचुएशन के अंदर जा रहे हो, आप जब उस होटल के अंदर जा रहे हो, यू डोंट नो द लेआउट, यू डोंट नो एनीथिंग. पूरा वहां पे धुआं छाया होगा, पूरा वहां पे जैसे क्या हुआ था कि काफी सारे उन्होंने आग लगाए थे अंदर रूम्स में. यू मस्ट हैव सीन द फुटेजेस की स्मोक काफी सारा निकल रहा था. सो स्मोक है काफी सारा, आग की वजह से बहुत सारा पानी मारा था वहां पे, तो पानी काफी जमा हो गया था. बहुत सारी लाशें थी वहां पे, डेड बॉडीज फ्लोटिंग. ऐसे सिचुएशन के अंदर यू गेट इनसाइड एंड यू मूव फॉरवर्ड. जैसे आप सिखाते हो ना कि स्टेप फॉरवर्ड, इनिशिएटिव, करेज. सो जानते हुए कि सामने मौत है, व्हेन आई गेट इनसाइड आई विल नॉट कम बैक फॉर श्योर. ये जानते हुए भी आप आगे बढ़े, उसको कहते हैं रॉ करेज. दैट्स द क्वालिटी व्हिच इंस्पायर्ड मी कि अगर वो कर सकते हैं तो एटलीस्ट मैं कम से कम उस फोर्स को तो ज्वाइन कर ही लूं. मतलब जिस लेवल का करेज उन्होंने दिखाया, प्रोबेबली वो मौका मुझे मिला ना मिले, बट एटलीस्ट वो सेम यूनिफॉर्म तो मैं पहन के उनको ट्रिब्यूट है. सो एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. So this is very special reason to join NSC, and it really touched Yeah. my heart. Yes. सर जैसे आपने 26/11 अटैक के बारे में बताया, तो इट इज वेरी प्रोमिनेंट टू एवरीवन, बट सर इज इट एनी सिमिलर अटैक हैपेंड बिफोर इन इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब, एंड सर इसकी कैसे कॉन्सिक्वेंसेस थे? क्या हुआ था 26 मुंबई अटैक को, काफी सारा कवरेज, क्योंकि मीडिया भी काफी एक्टिव हो गई थी एंड उसकी वजह से वी ऑल कम टू नो. बट ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं इंडिया में या उससे पहले भी. स्पेशली आई जस्ट वांटेड टू से लाइक फॉर एग्जांपल 84 में जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इंडिया फेल्ट अ नीड ऑफ क्रिएटिंग अ फोर्स इनसाइड, फेडरल कंटीजेंसी फोर्स, जो क्लोज क्वार्टर बैटल या हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए स्पेशलाइज हो. उसके बाद ही 1986 में एनएसजी का गठन हुआ. एंड 26/11 मुंबई अटैक ही लोग उसके बाद ही जानने लगे व्हाट इज एनएसजी. बट एनएसजी हैज डन मेनी ऑपरेशंस, मतलब more than 100 operations NAG has conducted so far. जैसे उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म शुरू हो गए थे, जो पंजाब की इंसर्जेंसी के बाद. राजा सांसी में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें within very few minutes it was the operation was conducted and हाईजैकर को immediately neutralize किया गया था 52 SAG से. It was happened in 1992. सो अभी उस वक्त क्या हुआ था कि इतना मीडिया कवरेज या सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो इसकी वजह से उसको इतना मतलब पब्लिसिटी नहीं मिला होगा, पब्लिक डोमेन में नहीं था. बट एनएसजी हैज कंडक्टेड मेनी ऑपरेशंस. सेकेंड इंसिडेंट आई वांटेड टू से अबाउट 1977 में जब ये म्यूनिक ओलंपिक हुआ था जर्मनी में, तो वहाँ पे इसराइल के कुछ एथलीट्स थे, उनको हॉस्टेज बनाया था पैलेस्टीन ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप्स ने. एंड अनफॉर्चुनेटली उनको सभी को मार दिया गया था. All the hostages were killed. They were innocent athletes जो ओलंपिक के लिए आए थे. बट उसके बाद the Israeli has, मतलब उन्होंने एक्चुअली, मतलब लिटरली लैंग्वेज में बोला जाए तो चुन चुन के मार दिया था हर उस टेररिस्ट को. ठीक है, जो उसके बाद का जो ऑपरेशन हुआ था. बट दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर एंटायर वर्ल्ड कि जब दुनिया को पता चला कि अभी ये भी हो सकता है, मतलब किसी बिल्ट अप एरिया में, किसी अर्बनाइज एरिया में, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनल्स को, जैसे एथलीट्स हो गए हैं, स्पोर्ट्समैन या पॉलिटिशियंस वगैरह को हॉस्टेज बनाया जा सकता है. तो उसके बाद काफी सारे स्पेशल फोर्सेज जो क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए बने हैं हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए, वो गठन हो गए. जैसे जर्मनी में GSG-9 हो गया, फ्रांस में GIGN हो गया. एंड फिर उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे भी जब ब्लू स्टार हुआ तो वी हैव क्रिएटेड एनएसजी ऑन बेस्ड ऑन द सेम लाइन GSG-9 GIGN के ऊपर. So yeah. So since we are talking about NSG, sir, I want to know what does it take to become an NSG commando? I mean, in terms of physical, mental, and emotional ability. Yes. See, I just don't want to say about NSG commando. मतलब, yes, everyone know that the profession is very tough,
It is tough because it is very unique in nature to clear such test. ये मतलब टाइम का प्रेशर होता है हमेशा, बट जो टेस्ट जिस लेवल को जिस मतलब हमारी जितनी फिजिकल लिमिट्स है उसको क्रॉस किया जाता है, बिकॉज ऑपरेशंस भी वैसे ही होते हैं, मतलब 35 फ्लोर्स के ऊपर यू आर डूइंग अ बिल्डिंग इंटरवेंशन, 35 किलो का लोड है आपके बॉडी के ऊपर, आपने बीपीजे प्लेट्स पहने हैं, ग्रेनेड्स लटकाए हैं, राइफल है, पिस्टल है, हेलमेट है, एनवीजी पहना है, और उसके बाद आप एक चार्ज लगा के ब्लास्ट करके एक विंडो के अंदर घुसते हो और टेररिस्ट को मारना है और हॉस्टेज को बचाना है। तो ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है, उसके लिए एक पर्टिकुलर माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। तो ऑफकोर्स उसके लिए आपको फिजिकल आपके लिमिट के थ्रू ही आपको जज किया जाता है। तो टू बिकम एनर्जी कमांडो और टू क्लियर एनी प्रोबेशन, एनी स्पेशल फोर्सेस प्रोबेशन, भले वो पैरा का हो, मार्कोस, गरुड़ या एनी स्पेशल फोर्सेस, उसका कॉमन फैक्टर यही है कि एक तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ विल पावर, आपके अंदर वो विलिंगनेस होना चाहिए। जब तक वो विलिंगनेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आज सवेरे उठा तो मुझे पैरा कमांडो बनना है, कल फिर एनर्जी, परसों फिर मार्कोस, उसके बाद फिर आईपीएस, तो वो दिस इज नॉट अ विलिंगनेस, दिस इज जस्ट अ विश। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विश एंड विलिंगनेस। विलिंगनेस टोटल होता है, मतलब मैं पूरा अपना सब कुछ मैं दांव पे लगा लेता हूँ, मेरी जान से लेके माय मेंटल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, फिजिकल, सारा जितना भी कुछ है मेरा, वो सब कुछ मैं दांव पे लगा देता हूँ। ओके, मतलब डिटर्मिनेशन मेरा वही था कि लाइक यू सेड कि आई हैड एन इंजरी, शोल्डर इंजरी थी, बट जब व्हेन आई एंटर्ड इनटू दी मानेसर ट्रेनिंग एकेडमी में, मैंने ये ही डिसाइड किया था कि आफ्टर 90 days ऑफ प्रोबेशन आइदर आई विल क्लियर द प्रोबेशन एंड बिकम एन एनर्जी कमांडो, और मेरी यहाँ से सिर्फ डेड बॉडी जाएगी। सो दैट्स द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन यू शुड हैव। मतलब एम क्या होता है, मकसद, या जो बोलते हैं ना कि एक लक्ष्य क्या होता है आपका, कि जिसको आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बने हो, कि आप मरने के लिए भी तैयार हो इस चीज के। एंड दूसरा फैक्टर होता है अनवेवरिंग कमिटमेंट, मतलब जस्ट विलिंगनेस बहुत सारा है कि मुझे करना है, आपने छोड़ दिया, लेकिन कमिटमेंट नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम एन एनर्जी कमांडो और एनी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव या कमांडोज के लिए, या जिंदगी में आपको जो कुछ भी करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको एंटरप्रेन्योर बनना हो, आपको कोई आपके एंट्रेंस क्लियर करनी है, जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस या एनीथिंग, एनी डिफेंस के भी जितने भी आपके टेस्ट हैं, मतलब सीरियस को क्लियर करना भी एक प्रोबेशन ही है, एसएसबी को भी क्लियर करना भी एक प्रोबेशन ही है। वो भी किसी के लिए टफ हो सकता है, मेरे लिए टफ था वो, इट वाज वेरी टफ बिकॉज आई वाज नॉट अ वेरी स्टूडियस पर्सन। मतलब मेरा रिकॉर्ड इतना ब्रिलियंट है कि मैं 11th में 2 बार फेल हो चुका हूँ। आई वॉज वेरी एवरेज इन स्टडीज, 50-60% में लाता था। एंड कॉलेज भी मैंने मतलब जस्ट मतलब ऐसे ही पास कर दिया है। यस, आई वॉज वेरी एक्टिव इन एनसीसी एंड ऑल, आरडीसी, बेस्ट कैडेट, वो सब करता था मैं, बट नॉट गुड इन स्टडीज। बट आई न्यू दैट कि if I want to become an army officer, I have to clear the CDS. Yes. Okay. So ये दो factors, like one is your tremendous amount of total willingness and unwavering commitment. ये दोनों चीजें होगी तो you can achieve your aim. Okay. Yeah. So since we were talking about probation, so जब भी एनर्जी की प्रोबेशन के बारे में बात आती है तो इट इज वेरी टफ, एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट बीओसी, जो बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स है, जहाँ पे शोल्डर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सर, जिस हर इंसान की अपनी यूनिक स्टोरी होती है बीओसी को लेके, एंड आई आल्सो वांट टू नो सर व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस बीओसी। या ऑफ कोर्स स्पेशल तो बहुत है, मतलब इट वाज रियली मतलब मेरे लिए भी वो हमेशा एक बेंचमार्क रहेगा कि अगर वो मैं कर सकता हूँ जिंदगी में तो मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे सारे एस्पिरेंट्स को भी यही बताना है, इफ आई कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। बिकॉज 2015 में आई गॉट एन इंजरी, शोल्डर इंजरी हुई थी। वैसे भी मैं एकेडमीज वगैरह से भी काफी, आई वाज वेरी एवरेज इन फिजिकल सोर्स, कोई सुपरमैन नहीं था। बट जब शोल्डर इंजरीज हुई थी, आई गॉट मतलब यहाँ पे तो स्कूल लगे हुए थे, आई कुड नॉट एबल टू लिफ्ट माय हैंड लाइक दिस, मतलब इतना भी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, रेंज ऑफ मोशन नहीं था। बट देन मुझे डॉक्टर्स ने बताया गया था कि लाइक 1.5-2 साल आराम से इसको लगेगा टू रिकवर एंड गेट फिट अगेन। बट
वही अगेन मतलब वो कमिटमेंट जो बोलता हूँ मैं, विलिंगनेस है एंड दूसरा कमिटमेंट है। तो आई वॉज पोस्टेड इन कश्मीर, तो मैं ओपी पोस्ट पे ही था एंड वहाँ पे पेड़ के ऊपर जस्ट पेड़ को काट के बल्ली डाल के उसमें आई यूज टू डू अ पुल अप्स, जस्ट वो स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। एंड तो मतलब जहाँ पे भी मौका मिलता था मैं उसको जो फिजियोथेरेपी थी वो अगर 1 घंटा करनी तो 2 घंटा कर लेता था। इट वॉज वेरी पेनफुल, बट रिजल्ट ये रहा कि जो डॉक्टर्स ने 2-2.5 साल बोला था लगेंगे इसको रिकवर होने में, आई रिकवर्ड इन 9 months। एंड आई वेंट टू द बोर्ड एंड मैंने कहा सर आई एम फिट एंड फाइन। बोलता है यार इतना जल्दी नहीं कर सकते हम, 6 महीने तो अभी हुए हैं और जस्ट जस्ट 9 months एंड वी कैन डू इट, और 2 बोर्ड लगेंगे। नहीं, आई वांट टू गो टू एनएसजी एंड ऑल एंड ये सब। देन ही मतलब जोकिंगली द सर्जन सेड कि ओके गो एंड डू अ चिन अप्स, और मैंने करके दिखा दी उनको सर इन साइड शेप वन करके, एंड देन आई वेंट। एंड जब मैं व्हेन आई जॉइंड देयर इन प्रोबेशन, तो वहाँ पे सारे मतलब एलिट फोर्स से ही लोग आते हैं, पैरा एसएफ एंड इवन जो सीएपीएफ से भी आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, वो भी सारे मतलब दे आर ऑल, जब क्योंकि किसी भी यूनिट से एनएसजी के लिए कोई ऑफिसर जेसीओ जवान जो भी जा रहा होगा तो सीओ का एक वो मतलब उसका एक प्राइड रहता है कि शुड नॉट कम बैक फेलिंग द प्रोबेशन, बिकॉज नहीं तो वो ऐसा लगता है हर कमांडिंग ऑफिसर को मैं भी फेल हो गया। सो वो चुन चुन के टेस्ट लेके सबसे बेस्ट जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिजिकल्स में है, डिसिप्लिन में है, उसी को दे सेंड टू दी प्रोबेशन। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आई वाज द लास्ट पर्सन इन द फर्स्ट बीपीटी एंड तो बीओसी का व्हेन यू आस्क, तो बीओसी इज वेरी टफ इन एनर्जी प्रोबेशन कंपैरेटिवली अदर स्पेशल फोर्सेस, बिकॉज रिक्वायरमेंट वैसी है, काफी सारी शोल्डर या अपर बॉडी चाहिए होती है, बिकॉज हमको बिल्डिंग इंटरवेंशंस करने होते हैं। तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे 26 फीट वॉल हो गई या क्लाइंबिंग्स हो गए, रोप क्लाइंबिंग्स हो गई, सो उस सबकी हाइट ज्यादा है। एवरीथिंग जो रेजर स्विंग करके जो विच इज अ कॉमन ऑब्स्टेकल इन ऑल द स्पेशल फोर्सेस, बट उसका हाइट ज्यादा होगा और उसका लेंथ ज्यादा होगा। सो उसका जो टाइमिंग था मेरे लिए पास करने का, इट इज 16 minutes at the end of the probation. So there are 3 modules per second third, 4 weeks के 3 modules होता है, 12 weeks का probation होता है, that is 90 days equal to 90 days. So every modules के बाद आपका टेस्ट होता है ना, आपको एक certain time limit में आपको उसको क्रॉस करना पड़ता है। एक भी मॉड्यूल के अगर आपने उस टाइम के अंदर आपने वीओसी नहीं क्लियर किया, वीओसी इज अ वेरी मैंडेटरी टेस्ट, मतलब विद इन 2 hours यू आर रिटर्न टू योर रिस्पेक्टिव यूनिट्स। दे जस्ट थ्रो यू आउट। मतलब टेस्ट से पहले हमको बताया जाता है कि जिसको डाउट है तो अपना सामान पैक करके रखे टेस्ट के बाद आपको मौका भी नहीं मिलेगा, इफ यू फेल यू आर जस्ट मूविंग आउट। मतलब आपको सारे ऑब्स्टेकल क्रॉस करने हैं और टाइम के अंदर भी करने हैं, तब जाके आप वो टेस्ट पास कर पाओगे। सो टफेस्ट उसमें ये रहता है कि जो 26 फीट वॉल, इट्स अ स्टीप वॉल एंड यू हैव टू क्लाइंब 26 फीट हाइट। बट ये क्या होता है कि ये जस्ट इनिशियल ऑब्स्टेकल नहीं है। इनिशियल में देयर आर 12 ऑब्स्टेकल, दिस इज द 13th ऑब्स्टेकल, टोटल 26 ऑब्स्टेकल्स होते हैं। सो पहले 12 ऑब्स्टेकल्स में आपकी पूरी जितनी भी हाथ की स्ट्रेंथ है, जैसे कमांडो वॉक हो गया, रोप क्लाइंबिंग्स हो गई, रेंजर स्विंग्स हो गई, और बीच में आपको 1-3 किलोमीटर आपको दौड़ना भी पड़ता है। तो वो सब करने के बाद जब आप यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, उसके बाद आप खड़े हो जाते हो उस वॉल के सामने, एंड देन यू हैव टू स्ट्रेट स्टीप क्लाइंब करना पड़ता है। आपके पेट पे वेट एंड राइफल भी होती है, 7 kg वेट होता है, एंड देन आपका जो असॉल्ट राइफल होती है वो भी होती है। सो जो फर्स्ट बीओसी हुआ था, आई वाज जस्ट लाइक, मतलब बहुत सारे 2-3 ऑब्स्टेकल्स रह गए थे, एंड 26 में तो मैं जैसे कोई बोरी होती है उसको जैसे गिरा दिया जाता है, वैसे आई जस्ट फेल्ट। पहली बार जब गिर जाता है तो उसके बाद वहां पे खड़ा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि नहीं होगा साहब, निकल जाओ। मतलब वो कंधे की स्ट्रेंथ उतनी रहती है, कोई बहुत सुपर ह्यूमन होगा जो दूसरी बार चढ़ पाएगा एक बार गिरने के बाद। मैंने कोशिश की, बार 2-3 बार गिरा, एंड देन आई टुक ऑलमोस्ट 32 minutes फर्स्ट टाइम, विच इज ऑलमोस्ट अ डबल टाइम 16 मिनट जो था। एंड उसके बाद एवरी वन अराउंड माई टीम वर लाइक सांप से नहीं हो पाएगा, एंड आई वॉज वेरी वीक। शोल्डर की इंजुरी तो थी ही, एंड उसके बाद फेल भी हो रहा था, ब्लिस्टर्स आते थे, क्योंकि ट्रेनिंग चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट के लिए आराम मिल रहा है, यू आर गिविंग रेस्ट,
क्योंकि कमांडोज की बाकी की भी जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोबेशन में होती है। इंटरवेंशन ड्रिल्स हो गई आपकी, या आपको रन बैक्स हो गए, आपके फायरिंग हो गई काफी सारी, देयर लॉट ऑफ शूटिंग्स गोइंग ऑन, बिकॉज बहुत शार्प शूटिंग स्किल्स डेवलप करनी है। पिस्टल शूटिंग, एसएमजी, असॉल्ट राइफल, स्नाइपिंग, एवरीथिंग, बॉम्ब डिस्पोजल, बहुत सारे स्किल सेट होते हैं। तो वी आर कम्प्लीटली एंगेज। उसके बीच में फिर वो मोमेंटम विंग आ जाता है। बट अगेन वही है, मतलब जो मेरे हाथों में ब्लिस्टर्स आते थे, ब्लीडिंग होता था, बट उसके बाद भी उसको पकड़ के वापस चढ़ना है, मतलब अनवेवरिंग कमिटमेंट, व्हाट आई सेड। सो एक बार तो ऐसे लगा था कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि मतलब सिर्फ मैं अगर बहुत कोशिश करके वो चढ़ भी पाऊँ तो वो टाइमिंग में तो क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज 32 मिनट्स, 16 मिनट्स में मेरे को अंदर आना है जस्ट टू पास द टेस्ट, मतलब उसको पास करने के लिए। एंड कम कितना करूंगा टाइमिंग में, मतलब और बीच में रन के लिए भी अगर मैं रनिंग में एग्जॉस्ट कर लेता हूँ खुद को, तो ऑब्स्टेकल्स में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। सो एंड कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स तो बर्मा बीच करके है, इट टेक्स 1 मिनट, मतलब वो इतना, उसकी लेंथ ही इतनी है, यू जस्ट कांट रन ऑन दैट। वो पूरा ऐसे मतलब हिलता रहता है, इट्स कम्प्लीटली शेकी, वो बना ही वैसा है, रोप्स के ऊपर होता है। और उसकी जो डिस्टेंस उतना ऐसा, यू जस्ट कांट लाइक जस्ट फ्लाई ऑन, उसको आधा मिनट अपने कम कर दिया, तब हो नहीं सकता। सो देयर आर ऑब्स्टेकल्स लाइक दैट। सो बट मैंने वहाँ पे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का वो बर्स्ट लगा हुआ था, एंड जस्ट एक बार शाम को क्लासेस जाते हुए देखा। जब व्हेन आई सॉ हिम एंड आई रियलाइज एंड आई जस्ट, मतलब मुझे वो याद आया 26/11 अटैक में, व्हेन ही मूव फॉरवर्ड, आई न्यू दैट he was shot by a lot of bullets इंजरीज काफी थी उनकी बॉडी में। एंड बिलीव मी, जब AK-47 की गोली अगर जाती है बॉडी के अंदर से, इट्स वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। एक गोली भी बहुत पेनफुल होती है, उसका जो मजल वेलोसिटी होता है, इट्स मोर देन 900 मीटर्स पर सेकेंड। और ऐसी काफी सारी बुलेट्स अगर आपको लग जाती हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, यू कैन इमेजिन, एक तो ब्लड फ्लो जा रहा है, वो कितना पेन है। सो ही मस्ट बी gone through a lot of pain, but still he was there. He was standing there and fighting for the nation. तो अगर वो उस दर्द के साथ फाइट कर सकते हैं, तो ये तेरा दर्द क्या है? हाथों में ब्लिस्टर से कुछ भी नहीं, you bloody bastard, just get up and climb again. So ये खुद को ही मुझे वो मोटिवेशन आ गया कि even he can do that with that such a pain. ये तेरा पेन जो है, ये ब्लिस्टर्स, ये सब, ये कुछ नहीं उसके सामने। एंड देन आई जस्ट विदाउट, मतलब मुझे पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे ये यकीन आ गया फिर कि हो जाएगा। एंड जब लास्ट फाइनल टेस्ट हुआ था, आई वॉज एबल टू डू इट इन टू 13 मिनट्स 50 सेकेंड्स में मैंने क्रॉस कर दिया। सो इट वाज, आई वाज नॉट इवन इमेजिन, मतलब आई वाज जस्ट, जो मेरे आसपास के टीम्स प्लेयर्स भी, जो टीम मेंबर्स थे, जिसमें सारी मिक्स होता है वहाँ पे, JCU, जवान, ऑफिसर्स, मतलब उनको खुद को ही बहुत अच्छा लगा था। दे वर सो मोटिवेटेड, दे वर सो इंस्पायर्ड कि साहब, मतलब हम तो वैसे ही दौड़ते भागते रहते हैं, हम तो वैसे ही पैरा वाले हैं, इसके वाले, बट आपको देख के साहब सैल्यूट करने का मन कर रहा है। व्हेन आई फाइनली वॉन, इट फेल्ट लाइक, जो हमारी अल्फा टीम थी, मेरे साथ जो सारे थे, वी सेलिब्रेटेड, मतलब वो सब ने आके मुझे गले लगाया, दे वर सो हैप्पी। एंड सो दैट वाज अ मोमेंट। आई एम, मतलब उसी वक्त पता चल गया था कि आई क्लियर्ड द प्रोबेशन। So what is the value हाँ, of yeah. black uniform for you? Since the probation is tough, really when you get to have that uniform. Mhm. See, the value of uniform, okay, I'll tell you this incident also, so you will understand. When I saw this news on the news channels, 26/11, 26/27 को actually news आई थी कि we lost Major Sandeep Unnikrishnan, NSG Commando. रात भर वो न्यूज आ रही थी। उससे पहले भी 3 सीनियर ऑफिसर्स थे, अशोक कामटे, हेमंत करकरे, विजय सारस्वत। सो आई मेट हेमंत, Ashok Kamte. He was commissioner of my city, Solapur. I saw that उनके जो उनकी माँ थी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की, they were crying and वो देख रहे थे उनको। So I was very touched by that. जब when I decided कि I wanted to join the same force, and जब मेरा एनर्जी क्लियर हो गया प्रोबेशन, तो जो पोस्टिंग आई थी, तो पोस्टिंग मेरे को मुंबई मिल गया। एंड जब मुंबई के सामने गया, उन्नीकृष्णन द्वारा फर्स्ट जो एंट्रेंस होता है, एंड देन विद इन अ फ्यू मंथ्स
अगेन जब 26/11 हुआ था, एग्जैक्टली 10 years, 2008 में हुआ था, 2018 आई वाज इन एनर्जी मुंबई। जब मैं उनके पेरेंट्स को मिला, मेरे संदीप मुनिकृष्णन के, सो his father, he said that कि he should have not done that, he should have थोड़ा सा वेट कर लेता, या थोड़ा सा, और मतलब out of a concern, he was father, had he was looking every one of us like his son। मतलब उनका ये कहना था कि यार तुम लोग ऐसे मत करो, तुम थोड़ा सा कॉशियसली, थोड़ा सा, मतलब उनका कहना था कि ही शुड हैव वेट, है ना, थोड़ा देने वाय देख लेता, अकेला नहीं जाता, आगे आगे नहीं बढ़ता, तो शायद वी कुड हैव सेव्ड एन ऑफिसर। सो तुम लोग बी कॉशियस एंड ऑल। सो बट देन आई टोल्ड हिम कि सर, आई डोंट नो वेदर I should not comment on this, whether what he did is right or wrong. But 10 years back, एक ऐसा ही, मतलब पुणे में एक ऐसा नॉर्मल अंडरडॉग लड़का था जिसको जिंदगी में क्या करना है पता नहीं था। He was inspired and today he's front of you wearing the same uniform. आपके बेटे का नाम मेजर संदीप है, I am Major Sidram, the same rank in the same year. So this is a legacy he has created. So that's the value of that uniform for me. So मतलब मुझे यही कहना है ना कि ये जो टेररिस्ट होते हैं उनको तो क्या है, वो तो कुत्ते की तरह कोई भी बन सकता है, but to become a Major Sandeep Munikrishnan या energy commando, it takes 10 years, lot of hard works, hardships, determination, and we are there, we are always there. Yes. आज मैंने ये मैं इंस्पायर्ड हो गया, कल कोई और इंस्पायर्ड हो जाएगा, this legacy will go on. So yeah. So since we're talking about probation and training, so punishments काफी unique मिलती हैं and they are like mesmerizing. So कोई ऐसी punishment मिली हो during training or probation जो आपको आज भी याद है? प्रोबेशन में तो ऑफ कोर्स प्रोबेशन में तो काफी सारी पनिशमेंट तो नहीं बोलेंगे उसको, बट एक्स्ट्रा टास्क वगैरह मिलता रहता है, बिकॉज वी वर स्लीपिंग एंड वी आर फाउंड स्लीपिंग, सो वी गेट लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वेट्स, एंड एक्स्ट्रा वेट्स डाल के फिर आपको एक्स्ट्रा पीटी करनी है, या आपको मतलब ऐसे कुछ काम होते हैं जो आपको बाकियों को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, आपको नहीं मिलता। बट वन वेरी फनी पनिशमेंट आई गॉट इन द एकेडमी। एकेडमी में वी वर सीनियर्स हो गए थे, सीनियर टर्म में थे, एंड मोबाइल वर रेस्ट्रिक्टेड। आई गेस दीज डेज शायद उन्होंने अलॉट कर दिया होगा, बट हमारे टाइम पे इट वाज कंप्लीटली बैंड, एंड सीधा 14 रेस्ट्रिक्शंस मिलती थी, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस जो जिसके पास मोबाइल पकड़ा जाता था। एंड सो मेरा रूम जो था इमीडिएटली कोहिमा कंपनी के अंदर घुसती, फर्स्ट रूम मेरा ही था। सो एक बार क्या हुआ, तो जूनियर टर्म्स में जितने भी जूनियर्स थे, दे हैड गॉन फॉर अ कैंप प्रवेश करके होता है, सो हम सिर्फ सीनियर्स ही थे। तो हमारे डीएसएस आ गए थे, हमको जस्ट सीनियर हुए 1-2 हफ्ते हो गए थे, एंड उन्होंने रात को अच्छा खासा हमारा प्यारा सा सेशन स्टार्ट किया था। एवरीवेयर एवरीबॉडी, कोई यहाँ पे रोल कर रहा है, कोई वहाँ पे कीचड़ में है, कोई यहाँ पे महाराजा बन रहा है, कोई वहाँ पे पानी कैंपर ड्रिल हो रही है। जो 5-6 डीएसएस, सारे डीएसएस आ गए थे। उसमें एक मेरा कोर्समेट था, he is still serving, so I will not name him. उसको पंपिंग जो होता है ना, जैसे पुशअप्स मारते हैं, पंपिंग करते हुए उसको बोला कि एवरी रूम यू गो एंड यू चेक किसके पास मोबाइल छुपा है किसी ने। सो उसने वो पूरा रूम चेक कर लिया, ऑब्वियसली जितने पास वाले रूम थे उसी को चेक किया, एंड देन अब हमारा कंपनी कमांडर था, कोको बोलते हैं जिसको, he came out, उसने पूरी कंपनी को दोबारा फॉलोइंग करवाया, एंड ही सेड कि ऑन अप किसके पास मोबाइल है। Nobody said no sir, okay. फिर उसने पर्टिकुलरली नाम लिया, जीसी सिद्धराम फॉलोआउट, एंड उसके बाद जीसी सिमर एंड वन ऑफ माय कोर्समेट स्टिल सर्विंग। हम तीनों को उसने बाहर बुलाया, एंड ही सेड कि ओन अप, तुम्हारे पास मोबाइल है। अब एक बार हमने नो बोल दिया था, तो वी कैन नॉट जस्ट टर्न बैक कि यस सर, वी सेड स्ट्रेट अवे, वी सेड, मतलब कोई इमोशन नहीं, नो सर, मतलब 5 टाइम्स कही was kept on asking, on up, do you have mobile? No sir. On up, do you have mobile? No sir. Okay, fine. तो उसने मेरा चार्जर दिखा दिया, रूम नंबर 15 में कौन रहता है, ये चार्जर क्या कर रहा है तेरे रूम में। तो मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने मोबाइल तो छुपा लिया था अच्छे से, बट चार्जर somehow, एंड बाकी 2 कोर्समेट्स का मोबाइल ही मिल गया था। सो फनी
पनिशमेंट ये था कि ही सेड लास्ट डायल जिसको किया था उसको कॉल कर. इट वाज माय गर्लफ्रेंड्स कॉल. सो रात के 1:30 थे. ही सेड या गो कम ऑन कॉल हर. ने कॉल किया उसको एंड he said ki okay tell her that you are the most beautiful woman in the world. And I said I was like completely पूरा मैं ड्रेंच आउट हूँ, पसीने से कीचड़ लगा हुआ है, रात के 1:30. she was completely lost कि क्या हो गया, क्या बात कर रहा है तू एकदम से. एंड ओके नाउ टेल हर कि अगले 6 महीने से आई वोंट बी एबल टू टॉक टू यू अगेन. और मैंने ये बोल दिया एंड फोन को कट कर दिया एंड फोन जमा कर दिया. ओके नाउ स्टार्ट रोलिंग. तो आई थॉट कि हो गया होगा, बट नेक्स्ट डे फिर वापस 14 रेस्ट्रिक्शंस मिले. Okay. And वो 14 रेस्ट्रिक्शंस 1 महीने तक चले. So one single charger has so that kind of punishment होते रहते. But at the end of it जब OTA ball में मैंने गर्लफ्रेंड को बुलाया था, I met company commander and said this was my girlfriend. So it was a very funny moment and but उतने ही जोश के साथ हम लोग एक साथ नाच रहे थे, कंपनी कमांडर. Yes. So that was a punishment moment I remember from the academy. So this is a very unique way to take punishments. I was not expecting this kind of incident. So फौज के अंदर जो weapon होता है, it is like a part of its body. So sir, I want to know which is your favorite weapon and why? Why do you? Yeah. It's really my favorite question also. And see, probably I can completely understand that many defense aspirants wants to know the actual weapons. But I always, told these things. The best weapon is always your mind, because when you enter into any operations, any combat operations, basically. So the first thing that happened is the first thing that you face is the chaos. It's a lot of chaos in there. No matter how well you trained, no matter kitna bhi sophisticated, advanced machinery, I'm not talking about just a weapon, machinery aapke paas ho, ya technology aapke paas ho, gadgets aapke paas ho, it has no use if you don't able to understand the chaotic pattern of it. Because chaos is in the situation, but confusion creates in your mind. So आपका ये जो रिस्पॉन्स है टू पर्टिकुलर सिचुएशन, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है. सो इफ यू चूज क्लैरिटी, यू कैन सी द सॉल्यूशंस कि आपको करना क्या एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर सिचुएशन. बट if you react to it and if you create a confusion in your mind, so आपके पास मैंने कितना भी दुनिया का सबसे बेस्ट वेपन आपको दिया, you can't handle it properly. जो जितनी भी शार्प चीज होती है, so basically I want to say this, you should know how to handle a sharpness, otherwise you can cut yourself if you don't know how to handle it. So but of course still I want to say this, the best weapon that I ever felt is the MP5, because close quarter battle is my one of the, I mean of course it is my specialty. So हमेशा उसके लिए MP5 या पिस्टल मेरे लिए हमेशा fascinating रहा है. But if I want to go to the jungle operations, या जैसे कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी होती है, तो definitely I will go with the AK-47. So best assault rifle that we have. सर जैसे अभी आपने काउंटर इंसर्जेंसी के बारे में बात किया, सर जब ऐसी सिचुएशन में डील करते हैं तो सर वी आर फेसिंग आवर ओन सिटीजंस. So sir, I want to know what is the feeling when you're dealing with this situation, as well as sir, I want to understand the psychological factor, understanding their motivational factor as well as their mindset. See, we can't able to figure out till now. We know they are brainwashed. Yes. And I'm really happy that you said that they are part of our citizens, because this inclusiveness is there, but still they don't understand this. That's the only difference. I'll tell you, I wanted to say one incident. I just recently posted in Kashmir, and it was 2015. So वहाँ पे कुछ riots हो रहे थे, रजौरी में था मैं पोस्टिंग में. राइट्स हुए थे वहाँ पे, एंड वही पत्थरबाजी जो पथराव होता था वो चल रहा था. आई वॉज टेकन अ QRT, आई वॉज टोल्ड टू टेक अ QRT, एंड एक रूट लेके मुझे एक ब्रिज के ऊपर पहुंचना था. तो मैं जस्ट QRT लेके गया, एंड मेरे लिए सब कुछ न्यू था. व्हेन आई वाज क्रॉसिंग दैट ब्रिज, उस ब्रिज को एक जगह से क्लोज कर दिया था पूरी तरह से, बिकॉज दूसरी तरफ से
14-15 years of boys, yeah, मतलब तो मुंह पे पूरा रुमाल लगा के they were throwing stones and all. अब क्या हो गया था कि जो हमारी क्यूआरटी व्हीकल थी, आई वाज जस्ट, मतलब मैं व्हीकल से ऐसे जस्ट उतरा था, जस्ट देखने के लिए क्यूरियोसिटी से, बिकॉज मेरा सब कुछ फर्स्ट टाइम था. हालांकि मुझे नहीं उतरना चाहिए था ऐसे सिचुएशंस में. इट वाज कम्प्लीटली मतलब नो मूव एंड काफी रेस्ट्रिक्टिव जोन था. आई हैव टू मूव अहेड. मुझे आगे जाके उस ब्रिज के ऊपर जो एक आर्मी था हमारा, वहां पे जाके मुझे जाना था, मिलना था. बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जस्ट उतरा 2 मिनट के लिए, देखने के लिए कि क्यों है ये, किस लिए. एंड जस्ट आई वाज जस्ट स्टैंडिंग. मुझे 1 मिनट नहीं हुआ था, मैंने जस्ट पास में 1-2 फीट आगे इतना बड़ा पत्थर आके गिर गया. एंड आई जस्ट सॉ ऊपर से, तो इट वाज जस्ट मतलब 7-6 इयर्स कोई छोटा बच्चा था जिसने ऊपर से जस्ट ऐसे पत्थर छोड़ दिया था. सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ हेट्रेडनेस क्रिएटेड. मतलब बच्चे के लिए तो क्या है, मतलब कंप्लीटली ब्रेन वॉश है. ही डजंट नो एनीथिंग, ही डजंट नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. उसके लिए तो एक खेल होगा कि इस वर्दी को कोई देखेगा तो तू ऐसा करना है, ये चीज करना है. एंड ऑफ कोर्स अब वो पीछे बहुत बड़ा एक मतलब देयर वाज अ मतलब एक क्लिफ था छोटा सा, तो उसके ऊपर से उसने डाला था. एंड लकीली आई वाज जस्ट, मतलब एक तो हमारा वो जो पटका होता है वो साइड से होता है, सिर के ऊपर कोई कवर नहीं होता है. सो लाइक इट्स कंप्लीटली अ ब्रेन वॉश. इट मतलब उनको बचपन से ही वो सब चीजें बताई जाती है. सो टू रियली आइडेंटिफाई योरसेल्फ with something bigger than your surrounding is very important. मतलब ये एजुकेशन सिस्टम से ही होना चाहिए. स्कूल्स में जो हम राष्ट्रगीत गाते हैं, तो अभी जब स्कूल्स में हमको पता नहीं चलता है नेशनल एंथम, खड़े रहना है, एंड 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम तिरंगे के सामने सैल्यूट करते हैं या परेड करते हैं. बाकी की जगहों पे हमको उस चीज की वैल्यू नहीं पता चलती है. बट व्हेन यू गो टू दैट लोकेशन, स्पेशली कश्मीर या कुछ एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट में, देन यू रियली नो कि इसका कितना वैल्यू है. ओके, यू स्टैंड फॉर समथिंग, यू स्टैंड फॉर अ कंट्री. ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रोबेबली वी आर द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ऑल, मतलब मैं उस डिस्कशन में जाऊंगा नहीं. बट ऑफ कोर्स कौन सी ऐसी सेफेस्ट कंट्री रहेगी एशियन कंट्रीज में या इवन इन द वर्ल्ड ऑल्सो. यू सी द यूरोप राइट नाउ, सो जिसमें ऑल द रिलीजन्स, ऑल द डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी आपको कौन सी कंट्री में मिलेगी. बट स्टिल वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर ब्रीदिंग टुगेदर एंड वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिबेटिंग. ओके, तो इट्स वेरी पेनफुल टू सी दिस थिंग कि जो इंसर्जेंट्स है स्पेशली उनका मोटिवेशन जो है, इट इज फॉर कंप्लीटली रॉन्ग रीजन. सो या इट्स रियली पेनफुल टू सी दैट. सर आपके एक्सपीरियंस काफी डाइवर्स है, कश्मीर से लेके सर आपने नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व किया. तो सर हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड फियर ऑफ डेथ? आई मीन थ्रेट ऑफ डेथ, बिकॉज एंड आई वांट टू नो हाउ डू यू कंट्रोल द फियर फैक्टर सर. उस टाइम पे आप रिएक्ट कैसे करते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम एंड यू नो सर इट्स अ मेंटल प्रेशर. सो हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशंस? या ऑफ कोर्स, सिर्फ फ्रैंकली स्पीकिंग फियर ऑफ डेथ हमेशा रहता है. बस डिफरेंस वही है कि उसके साथ काम करना पड़ता है. दैट्स कॉल्ड सोल्जर. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिविलियन एंड सोल्जर, दैट यू ऑलवेज वर्किंग अंडर अ डेथ. स्पेशली जब वी यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ, मतलब हमारे पास जो हेवी इक्विपमेंट्स थे, हमारे पास लॉन्ग रेंजर गन्स होती थी हमारे पास. उस गन्स को बहुत डिफिकल्ट टेरेन में वी यूज्ड टू इंडक्टेड. रिसेंटली ये जो चाइनीज का जितना भी इंकर्शन चल रहा है, तो काफी सारा मोबिलाइजेशन चल रहा था. सो आई वाज टास्क्ड टू टेक द heavy RT guns to the mountains, and mountains are completely different. मतलब I've served in Uttarakhand also, in Arunachal also, north east में. And रात के समय में मतलब पूरा बारिश हो रहा है, कोहरा छाया हुआ है, you can't see. and जो मतलब पहाड़ ऐसे होते हैं ना कि शूटिंग स्टोन्स आते हैं, मतलब बड़े बड़े स्टोन्स, ऐसे जैसे कोई ऊपर से बैठ के कोई शूट कर रहा हो वैसे उस स्पीड से स्टोन्स आते हैं. लैंडस्लाइड्स होती है. Yes, and you're taking a huge RT guns. So but you have to do it. And I'm telling you कि of course मतलब सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत सारे चैनल्स पे स्पेशल फोर्सेस एंड वो तो है ही सब. of course they are doing a very excellent job. but आर्टीज में भी जो हमारे ड्राइवर्स या जो हमारे कुछ गनर्स ट्रेड्समैन होते हैं, दे आर एक्सेलेंट या दे आर आउटस्टैंडिंग. मतलब सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म में
टेररिस्ट को मारना, yes, of course, it's a very brave act. But to induct such huge equipments into such terrible conditions के अंदर, and वो भी बहुत ही difficult terrain में, वो भी बहुत challenging काम है. And I am from a Sikh Paltan, of course. I mean, उनके लिए तो मतलब पता नहीं डर कहाँ पे, मतलब डर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म हो जाता है. मतलब एक बस उनको चाय मिल जाए and they are just again recharged for the new task. बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में वी हैड इंडक्टेड द गन्स. वी इन द सेंस आई वाज जस्ट देयर कमांडर, बट हमारे जो खालसे हैं ना, दे आर जस्ट सुप्रीम यार इन दिस सिचुएशंस. मतलब कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, एंड नीचे खाई ऐसी है कि 400 फीट 500 फीट देयर वर इंसिडेंट्स जहाँ पे जेसीपीज नीचे गिर गई हैं. मतलब वी कुड सी दैट. वो आता 2-3 महीने पहले, उसका जो होता है स्क्रैप वगैरह, वी कुड सी दैट कि 2-3 महीने पहले गिर गई थी करके. बारिश कभी भी आ सकती है, पूरा लैंडस्लाइड हो सकता है, बड़े बड़े पत्थर आ सकते हैं, पत्थर आ भी रहे हैं छोटे छोटे, तो कभी भी इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स वो पूरा लैंडस्लाइड हो सकता है, पूरा रोड रह सकता है. और वो ऐसा नहीं कि आप छोटा सा मतलब कोई आरएल लेके जा रहे हो तो आप इमीडिएटली भाग जाओ वहां से. सो ह्यूज 12 टन गन्स, 12 टन की गने हो. सो हमेशा फियर ऑफ डेथ तो हमेशा रहता है. सो वही सोल्जर का, और मतलब जो आई डोंट से सिविलियंस में भी काफी सारे ऐसे होंगे, बट ओनली डिफरेंस इज दैट वी हैव टू वर्क अंडर इट, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू व्हाट इज सपोज्ड टू बी देयर. सो यस, ऑफ कोर्स हमेशा रहता है वो. सर एनएसजी के मिशंस और उनकी वर्किंग के बारे में तो लोगों को काफी कुछ पता है, बट सर आई वांट टू आस्क व्हाट आर द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग एनएसजी, बिकॉज इस चीज के बारे में मुझे लगता है काफी कम लोगों को अवेयरनेस होती है. Okay. Perks and benefits, see, I don't see that way, because just becoming a part of an elite force like NSG itself is a very proudest thing. मैं अभी भी I'm retired, but there are people who know that. मतलब कभी भी मेरे कार के ऊपर वो कुछ स्टिकर लगा होता है ब्लैक कैट कमांडो, तो इवन सिविलियंस भी आते हैं पूछते हैं कि सर आप यू पार्ट ऑफ वो जो 26 में अटैक हुआ था. मैंने कहा आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट फोर्स, बट यस, जिस फोर्स ने वो ऑपरेशन लड़ा था आई वाज पार्ट ऑफ दैट. सो एवरीबडी एज, उनके आंखों में जो वो मैं देखता हूँ ना कि सब कितना टफ होता है, वो कितना है, सैल्यूट यू. तो ये और क्या चाहिए, मतलब इससे बड़ा पर्क्स एंड बेनिफिट कुछ भी नहीं है. कि बट 15 अगस्त में मतलब वी वर treated like a celebrity. यार people used to just come and click the photographs बस एक बार, and that's really great to see that कि people respect a lot. So yeah. So at last I want to ask one important question, is that what is the biggest life lesson you have ever received or experienced during your service? Yeah, okay, life lesson. I always say this, yeah, what doesn't kill you makes you stronger. And these lessons I've learned through a very, very toughest operations that I've faced in Kashmir. I was posted in the anti-infiltration column. जो पूंछ एरिया आपने काफी सुना होगा, इट्स अ वेरी हाईली एक्टिव एरिया, जिसमें काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं, सीज फायर वायलेशंस काफी होते हैं. सो आई वाज टास्क फॉर द एंटी इन्फिल्ट्रेशन, एंड हमारे यहाँ पे काफी सीज फायर वायलेशंस होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से. सो एक बार हुआ था कि वी वर टास्क टू रिटेलिएट करना है, क्योंकि हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर अटैक हुआ था. वी लॉस्ट four boys from the infantry battalion. So I was tasked कि भाई मॉर्निंग में we have to these are the post and we have to engage them. So काफी अच्छा मैंने बमबारी की थी, and I've just destroyed many of the posts. I was so happy that day कि यार बहुत अच्छा काम किया है and something like that. But इवनिंग में मुझे कॉल आया था कि you be prepared because your position been रेकेट. जो यूएवीज घूमते रहते हैं ना, उसने मतलब तेरी पोस्ट के ऊपर किया, एंड जस्ट बी रेडी, कभी भी तुम्हारे ऊपर फायर आ सकता है. एंड आई जस्ट कॉल्ड ऑल माय पोस्ट कमांडर्स की स्टॉक अप करके रखना कि कभी भी अभी फायर आएगा तो पता नहीं 8 घंटे 10 घंटे कभी भी चले, नो मूव हो जाए. सो नो कि वी शुड नॉट हैव एनी मूवमेंट. तो मैंने सबको बुला लिया, एंड आई थॉट कि चलो अभी टाइम है, मतलब इवनिंग का कॉल था, सबको बुला लिया, मैं ब्रीफिंग कर रहा था, एंड इमीडिएटली जस्ट
वो फिन का आवाज आ गया करके एक आवाज आता है, एंड जस्ट ब्लास्ट। एंड जस्ट मैंने बाहर आके देखा, हमारा जीसी साहब ने ऊपर देखा कि और एक ब्लास्ट हो गया, एंड ही सेड कि साहब जी शुरू हो गया, बस इतना उसने बता दिया। एंड आई वाज लाइक अरे यार, मतलब मतलब हमेशा आई लाइक आई सेड ना कि केओस हमेशा होता है, इट इज अनसर्टेन। मतलब मुझे कॉल आया था इनसे कि शाम को आपके ऊपर शुरू हो जाएगा, बट दोपहर को ही एकदम से स्टार्ट हो गया, वो तो बता नहीं सकते। एंड मुझे ये टेंशन था कि सारे पोस्ट कमांडर मेरे पास है, अभी पोस्ट के ऊपर कोई कमांडर्स नहीं, मैन्ड बाय द जवान्स। बट एनीवेज आई कांट सेंड देम नाउ बिकॉज जब फायर शुरू होता है तो इनडिस्क्रिमिनेटली देने बाय मतलब विद इन 50 मीटर्स गोले आने लगे थे। एंड वो इतना हेवी उसका फायरिंग हमारे ऊपर चल रहा था, 50 मीटर्स के ऊपर पे ही इट्स अ मोटर शेल आ रहे थे। सो आई टेल यू, ये एक मोटर शेल होता है 120 mm का, उसमें 2.7 kg का TNT होता है। मतलब एक ग्रेनेड भी होगा आपका, तो उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300 to 400 ग्राम्स TNT होता है। सो यू कैन इमेजिन, मतलब 10 से 8 से 9 ग्रेनेड्स अगर एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं तो एक गोला वो वैसे ब्लास्ट हो रहा था, और ऐसे काफी सारे गोले हमारे ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे एक साथ में। एंड वो मेरी जो एक जो परमानेंट डिफेंस करके होता है, एक जो बनाते हैं जिसके अंदर मैं बंकर के अंदर था, वो बंकर पूरा ऐसे हिल रहा था, उस वाइब्रेशन से हिल रहा था सर। अब मेरे अंदर मेरा हवलदार था, टुडे इज अ JCO, ही वाज दैट टाइम हवलदार, एंड ही जस्ट आई जस्ट रिमेम्बर ही सेड कि साहब जी आज तो गए हम। मतलब आई कुड सी माय टॉमस्टोन कि यहाँ पे लग जाएगा लेट मेजर सिद्धांत सोलंकर, क्योंकि वो कभी भी ऊपर आके गिरेगा, एंड आई वाज जस्ट ब्लास्ट। मतलब हमारा कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। एंड बट देन अगेन वही थॉट था कि अगर मैं यार यहाँ पे बैठ के मरने से अच्छा है बाहर निकल के एटलीस्ट एक दो शॉट तो फायर करूँ के ऊपर, मतलब कुछ ना करके मरने से अच्छा है कुछ करके मर जाऊं। सो मैंने BPJ पहना, हेलमेट पहना, राइफल टांगी, और जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था मेरा हवलदार भी बोला साहब जी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा यार अभी। एंड देन उसके बाद मैं दौड़ा ऊपर, मुझे एक पोस्ट पे जाना था, जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है, वहां से मुझे ऑर्डर देके फायर शुरू करना था। बिकॉज मैं तब तक फायर नहीं खोल सकता जब तक मैं देख नहीं पाऊं। एक हाइट पे मुझे जाना था। एंड जिस जिस स्पीड से दौड़ा था मैं, मतलब थोड़ा एग्जैजरेट करूंगा तो मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता हूँ। उस स्पीड से मैं दौड़ा था वहां पे। एंड जस्ट मैं ऊपर पहुंचा, एंड देन फाइनली आई गिव द इनिशियल ऑर्डर्स, एंड फिर हमारे मोटर स्टार्ट हो गए, फायरिंग स्टार्ट हो गए दोनों तरफ से। तो तब जाके थोड़ा सा उनका जो मतलब कंटिन्यूअस फायर जो आ रहा था वो कम हो गया, बिकॉज वो भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि अगर आपके ऊपर भले ही 500 मीटर के ऊपर भी कोई ब्लास्ट हो जाए, आप इमीडिएटली थोड़ा सा टक डाउन करोगे कि अरे मेरे ऊपर भी अभी फायर है। फिर उसके बाद तो जो हमने मतलब लगातार 12 घंटे तक फायर चला, एंड आई कुड सी दैट कि मैं जब दौड़ रहा था ना तो देने बाय एक्चुअली ब्लास्ट हो रहे थे, एंड वो इतने नजदीक थे कि जो मतलब आई 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 केप्ट दोस शेल्स, मेरे पास है अभी भी, तो आई कैन शेयर यू दैट फोटोग्राफ्स आल्सो। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसके ऊपर लिखा लिखा हुआ है। एंड मतलब सो दैट्स द लेसन आई हैव लर्नड कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। उसके बाद जिंदगी का मतलब बोलते हैं साक्षात्कार हो गया। मतलब मेरे कुछ भी नहीं मिलने वाले थे, मतलब जलाने के लिए मेरे मेरे बॉडी से कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे जगह पे आई वाज सेफ। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मेरे मेरे यार वहां पे 84 जवान थे हमारे, उसमें से एक को भी छोटी सी भी खरोच नहीं आई थी, छोटा मोटा कुछ चोट लगा होगा। एवरीबडी वाज सेफ एंड साउंड। तो शाम मतलब 2:30-3 बजे फायर स्टार्ट हुआ, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock तक चला, उसके बाद 5-6 घंटे का साइलेंस था, और 11-12 बजे मॉर्निंग में दोबारा भी स्टार्टेड वॉकिंग आउट, कमिंग आउट ऑफ द बंकर्स, एंड आई कुड सी एवरीवन। मतलब सारे पोस्ट से मैं रिपोर्ट जब ले रहा था, ऑल ओके साहब जी सब ठीक है, ऑल ओके साहब जी सब ठीक है। देयर आर 12 पोस्ट और सबने ऑल ओके दिया। दैट वाज द फीलिंग आई कुड सी। मतलब मेरे लिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर वो है ना कि जो जितने जवान JCO उसकी जो पूरी टीम जो लेके जा रहा है, वो सेम पूरी उतनी स्ट्रेंथ वापस अपने घर पे भेजे। मतलब मेरे पूरे होशाबाद में वही मेरे लिए शौर्य चक्र है। So that's the most successful operation I had. So when you were describing the story, it felt like a movie because you were saying इधर से भी blast हो रहा है, इधर से भी blast हो रहा है.
So it was indeed या very और special. मैं ये मतलब बताओ, Yes, sir. या एक्चुअली क्या है ना, ये वो सपना जो होता है ना कि बॉर्डर मूवी देख के भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ था. Yes, sir. सो यूजुअली हम लोग मतलब इट्स अ वेरी फनी थिंग कि मेरा भाई था, मतलब बचपन में हम जब वो दिवाली के पटाखे होते थे ना, उसको एक्चुअली मैं मिट्टी सारी इकट्ठा करता था, उसके में वो लगाता था जो सुतली बॉम्ब होता है, Yes, और sir. उसको फाड़ता था. तो मुझे अच्छा लगता था कि ब्लास्ट हो गए हर जगह पे, क्योंकि बचपन से सपना था कि मुझे जाना है. बट एक्चुअली मेरे साथ जब हो रहा था तब काफी मतलब मुझे लगा कि अरे यार दोबारा नहीं होना चाहिए. Sir, the whole episode regarding your journey was really inspiring. Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.